ओम शांति। आज के बाबार महावाक्य साकार मुरली 14 जून। आज के विशेष बाबा निजेर यज्ञेर কিভাবে यज्ञ रक्षक बाबा সামহাল করছেন, সামহাল করবেন ওনারে যজ্ঞ। আর এই যজ্ঞের মধ্যে বিঘ্ন পড়ে, সেই বিঘ্নটাও কেন পড়ে তার কারণগুলা বাবা বললেন। বিঘ্ন মায়া বিঘ্ন ডালবে কেন কি আমরা যেখানে বসে আসি সে হইল মায়া রাজ্য। তো মায়া রাজ্যে মায়া কখনো আমাদেরকে ছাড়বে না, মানে নিজের দিকে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেই। এই জন্য বাবা বলে দিলেন কি মায়া রাজ্য থেকে নিজেকে বাঁচাইতে হবে। তো আমরা মায়া রাজ্যের মধ্যে আছি, এখন বাবা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন রাম রাজ্যে। তো এখানে বিঘ্ন পড়বেই। আর বাবা বললেন কি গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতে কমল ফুল সামান থাকতে হবে। কমল ফুল যেভাবে থাকে সেইভাবে গৃহস্থ ব্যবহারে যারা গৃহস্থ করে ফেলছেন তাদেরকে বাবা বললেন গৃহস্থা ভালোভাবে সামলাইতে হবে। যদি গৃহস্থাকে ভালোভাবে সামলান তো বাবার সুনাম হবে। আর যদি গৃহস্থ করে ফেলছেন, করার পরে যদি গৃহস্থাকে ভালোভাবে না সামলান তখন কিন্তু বাবার দুনাম হবে। বাবা এমনও বলে দিচ্ছেন যে যারা গৃহস্থী তাদেরকে কিভাবে থাকতে হবে, যারা কুমারী কন্যা তাদেরকে কিভাবে থাকতে হবে, সব কিছু বাবা আজকে একদম ক্লিয়ারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তো শুনে নেই বাবার মহাবাক্যতে বাবা আজকে আমাদের বিশেষ বিশেষ অ্যাটেনশন কোন কোন কথাতে বলছেন, যেগুলাকে বিশেষভাবে মনে দিতে হবে আর শুনতেও হবে, গ্রহণ করতে হবে। শুধু এটা মনে করতে হবে না বাবা তো বলেন, কিন্তু বাবা যেটা বলছেন ওটাকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে। বাবা বললেন बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे। बाबार साथे साथे तखने जाइते पारबेन जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। এই দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য হবে, কোনো ধরনের আকর্ষণ হবে না, তখনই বাবার সাথে সাথে যাওয়া যাবে। प्रश्न, भगवान समर्थ होते भी उनके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? स्वयं भगवान समर्थ, उन्हीं निजेई शक्तिशाली सर्वशक्तिवान, उन्हीं থাকতেই ওনার यज्ञते विघ्न কেন পড়ে? দেখেন কোনো সময় এরকম বলেন আমরা তো বাবার বাচ্চা, এটা হবে না, কিন্তু বাবা কি বললেন যে ভগবান সমর্থ হতেও বিঘ্ন পড়ে। কেন পড়ে ওই কারণগুলা বলে দিচ্ছেন। এই জন্য খুব সূক্ষ্মভাবে মুরলিটাকে শুনতে হবে, বিচার করতে হবে যে বাবা কত সূক্ষ্মভাবে আমাদেরকে তৈরি করছেন, যে কোনো সময় ভোলাপনে এই জ্ঞানে বাবা রাখছেন না। বাবা জ্ঞানের সাগর, আর জ্ঞানটাকে একদম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথাগুলোকে ধরিয়ে দিচ্ছেন, যাকে ধরে আমাদেরকে চলতে হবে। বিঘ্ন কেন পড়ে তার কারণ বললেন, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। হ্যাঁ, বাবা কি বলে দিলেন, ভগবান থেকেও तीखा, মানে বাবা থেকেও तीखा হলো রাবণ। খারাপ জিনিস গ্রহণ করতে সময় লাগে না, ভালোটাকে গ্রহণ করতে বহুত সময় লাগে। ওই হিসাবে বাবা বললেন। কিন্তু আমরা জানি যে রাবণ আর রামের সাথে যখন যুদ্ধ দেখিয়েছে তখন রামও শিবের আরাধনা করলেন আর রাবণও শিবের আরাধনা করলেন। তো দুজনের উপরে হইলেন শিব বাবা। এই জন্য তো বলেছে তো রাবণ কিভাবে বাবা থেকে বড় হবেন। কিন্তু আমাদের কত জন্মের হিসাব নিকাশগুলো আছে সে সামনে আসে, আর আমরা যেটা ঠিকভাবে শ্রীমতকে পালন করি না তখনই আমাদের সামনে কত ধরনের বিঘ্ন তৈরি হয়ে যায়। हाँ, तो बाबा की बोलें क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है।
जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा, हाँ, कारो राज्य निये नेওয়া হয় তখন কি ও ছাড়বে না, তো वह विघ्न डालेगा ही। তার রাজ্য নিয়ে নেওয়া হচ্ছে তো বিঘ্ন ডালবে না, ছাড়ে দিবে, নিয়ে যাও ভাই আমার রাজ্য। কে তো সাধারণ না, রাবণ যার মধ্যে প্রবেশ করছে তারাই ছাড়ে না, আর ও তো নিজেই রাবণ, তো কিভাবে ছাড়বে? তো वो विघ्न डालेंगे ही, रावणের কাজই হইল বিঘ্ন ডালা। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते आए हैं। ड्रामा प्लेन अनुযায়ী यज्ञते शुरू থেকেই विघ्न পড়ছে, पढ़ने ही हैं। हम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पति मनुष्य विघ्न डालेंगे। আমরা নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি, পুরনো দুনিয়াকে ছাড়ছি, তো ছাড়লে তো সব খারাপ পাবে না, খারাপ পালে হ্যাঁ বিঘ্ন তো ডালবেই। কোনো জায়গায় আপনি গেছেন, কোনো জায়গায় আপনার কোনো আত্মীয় বাড়িতে, আর আপনি আসছেন, চলে আসবেন, তখন আত্মীয়রা কি বলে, আরে আজকে তো গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে, আজকে তো এটা হয়ে গেছে, আজকে তো সমস্যা আছে। কেন বলে? আসলেই বন্ধ থাকে না, কিন্তু ওনারা যাওয়া দিতে পছন্দ করে না, এই জন্য বাধা সৃষ্টি করে, তা কি উনি যাবে না। তো রাবণ আমাদেরকে তো বাধা দিবেই না, কিন্তু আমরা রাম বাবাকে স্মরণ করলে ওই বাধা থেকে বিঘ্ন থেকে পার হয়ে যাব, কিন্তু স্মরণ করতে হবে বাবাকে। गीत है ओ दूर के मुसाफिर हमको भी ले चल साथ। दूर के मुसाफिर के হইল? দূরের মুসাফির হইলেন আমাদের বাবা। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, कितनी अच्छी गीत। जैसे वो वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वेद शास्त्र द्वारा भक्ति मार्गे रास्ता पावा जाए, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताती है। ये गीत सुनार पड़े हमरा रास्ताटा एकटू देखते पारलाम। वह भी कुछ समझते नहीं हैं, ओरा तो किछु बुझे ना। शास्त्र का अर्थ आदि सुनाना वह जैसे कनरस है। शास्त्र सुनाए ওটা হলো কানের রস। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? दूरेर मुसाफिर के हैं किसको कहा जाता है? आत्मा जानती है। हम भी दूर देश के मुसाफिर हैं, আমরাও তো জানি না कि আমরা কত দূর থেকে আসছি, আমরাও दूर देशेर मुसाफिर। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते, यह आत्माएं समझती है। कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीव आत्मा बनता हूँ। टेम्परेरी अल्प समয়ের জন্য বাবা শরীরের মধ্যে আসেন, যখন শরীরের মধ্যে আসেন তখন কি হয়ে গেলেন? जीव आत्मा। तुम स्थायी जीव आत्मा रहते हो, हमारा तो सब समय थाकी। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीव आत्मा बनता हूँ, सो भी तुम्हारे माफिक नहीं बनता हूँ। আমাদের মতন না, অল্প সময়ের জন্য আসলেন, কাজ হইল, চলে গেলেন। আমরা তো সর্বদাই মধ্যে থাকতেছি। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ। जीव माना শরীর, আর এই ব্রহ্মা বাবা শরীরের মধ্যে শিব বাবা প্রবেশ করেন। अपना परिचय देने, কেন প্রবেশ করেন? বাবা নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য। नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? बाप ने समझाया रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े ते बड़ा बंधन है। पवित्रता उपरों को तो बंधन आसे। अपने को आत्मा समझना, निजे के आत्मा मने कोरा,
जिस देश के मुसाफिर हैं, पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। पतित पावन হইলেন बाबा और भक्ति मार्गे ओनाके सबाई स्मरण करे। वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले जाऊंगा। बाबा की बोलें सबाई के निये जाबेन, किसी को भी छोड़ नहीं दूंगा। छाड़े दिबे ना, काउके निये जाबे, केउ की छाड़े दिबे एटा होबे ना, सबाई के निये जाबे। वापस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है। प्रलय होबे ना, जेमन बोले ना प्रलय हो गेलो सब नीचे चले गेलो, रकमो होबे ना। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड तो थेके जाए। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। सतयुग आदि में श्री भारत खंड ही रहता है। कलप के संगम पर जब बाप आते तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता, बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। सुनें बाबा की बोलले जे बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करछेन और आमरा की करछि ওই স্থাপনার মধ্যে মদত করছি। কত আনন্দেই থাকতে লাগে যে বাবার ভগবান যাকে সারা দুনিয়া খুঁজছে, সাধক সাধনা করছে, আর ওনার আমরা সাথী হয়ে ভগবানকে মদতগার হচ্ছি। তো এই জন্য বললেন, तो गीत सुना कहते हैं बाबा हमको भी ले चल साथ। बोला ना, गीत बोलो ना, वो दूर के मुसाफिर हमको भी ले चल साथ। तो दूर के मुसाफिर बापो होइले ना, हमराও दूर देसी। बाप कहते हैं ऐसे साथ तो कोई चल ना सके। এমনি তো কেউ যাইতে পারবে না, ইচ্ছা করলো চলে গেলাম। এই জন্য বাবা কিছুদিন আগে বলতেন যে मासी का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है, माने मासिर घर ना, मासी बाड़ीते मैं ताड़ाताड़ी चले जाई। तो बाबा बोललेन कि बाच्चारा बोलले कि आमाके निये चलो। तो बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से बैराग न आए। केउ चलते पारबे ना जखन पर्यन्त दुनिया दिके बैराग ना आसे जाए। नया मकान बनाते हैं तो पुराने से दिल हट जाती है। नतून जखन तैयारी हो जाए तखन पुरानो दिके अटोमेटिकली सरे जाए ना, मन छड़ाइते लगे कि अंतर ऑटोमेटिकली अंतर दिके सरे जाए। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। निजे के आत्मा मने करे बाबा के स्मरण करते थाको। सदगति करने वाला सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है। सदगति करार जन्य एकजने मुसाफिर उनिও आसছেন। तो आसছেন माने करबेन। उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह देती है, जाने ना और बोले दे सबार मध्य आছেন। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं, आते भी हैं तो समझाते हैं। हम बाप दादा के पास जाते तो यह फैमिली हो गई। बाप दादा माना फैमिली, परिवार हो गलो। यह है ईश्वरीय फैमिली, ईश्वरीय परिवार। किसको बहुत बच्चे होते हैं
तो बड़ी पलटन हो जाती है। মানে যেখানে ফ্যামিলি মেম্বার বেশি থাকে তখন কি বলে যে একটা পল্টন হয়ে গেছে, है ना, অনেক লোক থাকে ফ্যামিলিতে। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहने हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जानते हैं, सबाई जाने, हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडव और कौरव ने खेल खेला, पांडव और कौरव मिले खेल खेल लो, राजाई दावे में रखा, राजपट्टा की कर लो दावाते दिए दिलो। अब राजाई न कौरव की न पांडव की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है, पावरोदरो नहीं पांडुदरो नहीं। दिखाते हैं उनको शहर निकाल दिखाते उसको शहर निकाल मिला। हथियार आदि छिपाकर जाए रखे, मैंने शहर থেকে বের করলো আর যায় কি করলো, ওনারা हथियार आदि বের করে রাখলো। यह सब दंत कथाएं हैं। न पांडव राज्य न कौरव राज्य, न उन्हों के आपस में लड़ाई चली, न कौरवদের राज्य হইল न पांडवদের হইল, न ওদের आपसे নিজের মধ্যে কোনো যুদ্ধই হইল। लड़ाई राजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई हैं। लड़ाई हुई है कौरव और यादवों की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 कुत्ते बचे, एक कुत्ता रहा। 5 पांडव बचे और एक साथ में कुत्ता, মানে পাণ্ডব দেখায় না মহাভারতে যে কৌরব আর পাণ্ডব যুদ্ধ হইল, তার মধ্যে সব মরে গেল, শুধু 5 পাণ্ডব বাঁচলো আর ওদের সাথে একটা কুত্তা বাঁচলো। वह भी सब पहाड़ पर गल मरे, ওরাও পাহাড়ে যখন গেল ওখানে গলে মরে গেল আর গলে গেল। खेल ही खलास, राज्यों का अर्थ ही नहीं निकलता। বাবা আসেন কলিযুগে অন্তে, আসে রাজযোগ শিখান, রাজযোগের পরে আমরা সতীযুগে যাই, তো এখানেই সব শেষ হয়ে গেল খেলা, তখন রাজযোগের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कलप कलप आकर एक धर्म की स्थापना करते, बुलाते भी हैं पतित पावन बाबा आवो, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहें। कमल फूल समान থাকতে কাকে বললেন বাবা? যারা গৃহস্থে চলে গেছে, এই যে কুমারীদেরকে এটা বলেন নাই। वह तो है ही पवित्र, यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहारे থাকো বাবা, কুমারীদেরকে বলে না যে গৃহস্থী, অন্যের গৃহস্থীর মধ্যে থাকো, যে গৃহস্থী বানিয়েছে সে গৃহস্থী সামলাবে, ওই গৃহস্থীর মধ্যে বাবা থাকতে বলেন নাই। কি বলছেন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, এখানেই বহুত উলঝন হয়ে যায় যে বাবা বলছেন গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো। গৃহস্থ ব্যবহারে কাকে থাকতে বলছে? যারা গৃহস্থ বানিয়েছে, মনে করেন গৃহস্থ বানিয়ে এলো, এখন যদি বাবা বলেন কি সবাই চলে আসো, তো গৃহস্থ ছাড়ে চলে আসলে কি হবে? গৃহস্থটা খারাপ হবে না? তখন লোক কী ভাবে যে দেখো এখানে গেলে তো গৃহস্থ ব্যবহার ছাড়ে দিতে হয়। এই জন্য বাবা যারা গৃহস্থ করছেন তাকে ছাড়তে বলে নাই, যারা বন্ধনে ফাঁসেন নাই তাদেরকে বলছেন বাবা সেবাতে লাগতে, তারা সেবাতে লাগো। कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र,
यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमारी तो हইলই পবিত্র। এই কথাটা বাবা কার জন্য বললেন? গৃহস্থীদের জন্য। কুমার कन्या मार पड़ती है। कुमारे ऊपरे और कन्या ऊपरे बाड़ी लोग की देय मारधर करे, माने बाधा विघ्न सृष्टि करे। तो लाचारी हालत में गंधी विवाह कराया जाता है। कोनो कोनो जगह एरकम परिस्थिति तैयारी हो जाए तखन की है गंधी विवाह करते लगे। वास्तव में मरना भी सहन करना चाहिए। मार भी सहन करना चाहिए। बाबा बोलें माने एमने तो मारटाओ सह्य करते लगे, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। मारते से क्यों तो मार सह्य करते बोलें बाबा, किंतु मारेर भये अधर कुमारी होते नहीं। बाल ब्रह्मचारिणी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारियों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल सामान बनो। যারা গৃহস্থে তাদেরকে তো বাবা বললেন ওইখানেই থাকে, তোমরা পদ্ম ফুল মতন থাকো। পদ্ম যেমন কাদাতেই থাকে কিন্তু ওর থেকে আলাদা থাকে, উপরে থাকে। তো বাবাও বললেন মন বুদ্ধি থেকে তুমি উপরে থাকবে, অর্থাৎ ওইখানে নিজেকে सेफ রাখবে, मेहनत करता লাগবে। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है। যারা অধর কুমার বা অধর কুমারী তাদের জন্য बहुत समस्या है। शादी न करने से बंधन नहीं होगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है, ज्ञाने मजबूत होते लगबे। छोटी कुमारियाँ जो सिंगारी हैं, छोटी कुमारियाँ जो सिंगारी हैं उनको तो हम ले नहीं सकते। वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता ज्ञान में आए तो सागिरी को ले सकते हैं। যাদের মেয়ে ছোট তাদেরকেও নেওয়া যাবে যখন মা বাপ আসবে। যখন মা বাপই চলে আসবে তখন তো অসুবিধা থাকবেই না। उनको तो हम ले नहीं सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। যে ছোট তারা বয়স হয়নি 18 বছর তাদেরকে বাবা কি বললেন যে নিজের বাড়িতে থাকেও পড়া করতে পারে। माता पिता ज्ञान में आए तो सागिरी को ले सकते हैं। यह तो स्कूल का स्कूल है। स्कूले मने करबेन तो स्कूल मने करबेन एटाके। तो स्कूल का स्कूल भी है, घर का घर भी है, और सत्संग का सत्संग। सत्य माना एक बात जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर हमको भी ले चल साथ। तो दूरेर मुसाफिर होइलेन शिव बाबा। आत्मा गोरी बनती है बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव गोरा रहता हूँ। पिरुटी में रहने वाला हूँ मैं, आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ। और तो कोई ऐसे मुसाफिर नहीं। बाप कहते मैं आया हूँ रावण राज्य में। यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है। আমরা নিজের শরীরকে বলি যেটা আমার শরীর, কিন্তু বাবা বলবেন না এটা আমার শরীর। यह इसका शरीर है। पतित
शरीर हमारा नहीं है, आते ही हैं इसके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावर था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते। पहले नंबर 16 कला संपूर्ण, अब कोई कला नहीं रहती। पति तो सभी हैं, तो बाप दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़े हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। केउ ये ज्ञानटा दीते पारबे ना। शास्त्र भले पढ़े ने, बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इस आत्मा को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान देते हैं। वह हो गया भक्त। सद्गति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर। उसको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता, और देह अभिमान आ जाता। वह कोई यह तो समझते नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा पड़ती है, यह कोई समझते नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं। बाप कहते हैं ये 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा आज के तिके 5000 आगे हो ये बोले गेছিলেন जे बच्चा तोरा जानो ना मैं जानता हूँ गीता में आटे में नून मिसल कुछ है, माने आटा मध्य तो नून को तो देवा जाए, अल्प देवा जाए, तो रकमे गीतार मध्येও আছে। लड़ाई भी बरोबर लगेगी। पांडव की विजय हुई, लड़ाई लागलो और विजय पांडवদের হইল। अब तुम समझते हो कि हम विश्व की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर से पतित पावन बाप उनको याद गोरा चाहिए। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की बनाई है भक्ति मार्गे। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। এখন আত্মার চড়তি কলা হচ্ছে, তো বাবা বলল চড়তি কলা তেরে ভানে সর্ব কা ভালা, একজনের জন্য সবার ভালো হয়ে গেল। तो सबका भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है। हम चले जाएंगे अपने सुख धाम, फिर हम वहाँ से नीचे कैसे उतरते। सुख धाम যখন চলে যাব সেখান আমরা শান্তি ধাম যাব, সেখান থেকে কিভাবে নামবো নিচে। হ্যাঁ, তো এইটাও বহুত বড় ব্যাপার যে আমরা উপরের দিকে কিভাবে নিচে নামি। हम चले जाएंगे अपने सुख धाम, फिर हम वहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह सारा ज्ञान बुद्धि तुम्हारी बुद्धि में है ना। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाने, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करो। तुम जानते हो
हम सूर्यवंशी भारत में राज किया, भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था, यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारणा करेंगे न कराएंगे। যারা 84 জন্মের চক্র নেয় নাই তারা ধারণা করবে না, অন্য কেউ করাবে না। कि इसने 84 जन्म नहीं लिया, यह देरी से आते हैं। स्वर्ग में आना, स्वर्ग में नहीं आते, पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते हैं। নতুন বাড়ি যখন তৈরি করে তখন ফার্স্টে নিজে থাকে, फिर किराए पर बैठाते हैं, किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकेंड থার্ড हुआ ना। যখন নিজে থাকলো, 1-2 বছর থাকে নিল, 6 বছর থাকে নিল, তারপরে কি করলো, নিজে অন্য জায়গায় শিফট হয়ে গেল আর ওকে किराएदार বসিয়ে দিল। अगर किसी को सीधा कहे जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो, हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है, तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव है। कहते हैं ना हम बाप दादा के पास जाते हैं, যখন মধুবনে যায় তখন সব কি বলে, বাপ দাদার সাথে মিলন মানাইতে যাইতেছি, বাপ দাদার কাছে যাইতেছি। তো ওই জন্য বাবা কি বলে দিলেন কি এগুলা দেখতে হবে। তো বাপ দাদার কাছে যখন যাচ্ছে তো পুরুষার্থ করছে, তো এই জন্য বাবার কাছে যখন যাচ্ছে তখন তো সব ধরনের পুরুষার্থ করবে। तुमको मालूम है माला में कौन कौन पिरोएंगे, अगर किसी को सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग अन्य जगह थाके ना, तो भटकता तो नहीं। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता है, कहते भी हैं ना हम बाप दादा के पास जाते हैं। शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं, ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धनवान हैं परंतु फुर्सत नहीं है, पूरा निश्चय नहीं तो मास 2 मास शब्द आकर रिफ्रेश, मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सके, मास 2 मास पर ही ऐसे बाबा थी के रिफ्रेश हो जाए। इसको घड़ी घड़ी कोशिश होगी, सुई पर जंग चढ़ी हुई होती तो चुंबक इतना खींचता नहीं, जितना पर योग होगा उसको झट कशिश होगी। जार बाबा साथे बुद्धि जोग थाकबे तार बाबा दिके आकर्षण होबे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी की होबे, যত আমাদের ভিতরে যেগুলা খারাপ স্বভাব আছে সেই স্বভাবগুলা যদি পরিবর্তন হয়ে যায় তখন কত খুশি হয়। कशिश होगी, हम चुंबक से मिले, गाते हैं चाहे मारो चाहे कुछ भी करे, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। बाबा तुम्हार दरजाय आसছি, दरजाय থেকে কখনো বের হবে না, परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, এরকম অবস্থা তো লাস্ট দিকে হয়ে যাবে। झट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। कहते हैं हे आत्माएं मन मनाभव रहो, भल अपने गृहस्थ व्यवहार में हो, ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है, इनको ना। सागर पास बादलों को आना है, बाबा हलेन ज्ञानेर सागर, रिफ्रेश होनी है, फिर सर्विस पर जाना है।
बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माता पिता को अपने बच्चे को संभाल बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। बहुत दौर ने समस्या आशय ही यज्ञ थे। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्य को पता ही नहीं। रावण भगवान से भी तीखा है। उसकी राजाई छीनी जाती तो अनेक प्रकार के विघ्न डालते रहते। रावणे राज्य থেকে রাবণ রাজ্যে আছে, আর ওইখান থেকে ওর রাজ্যপতিকে সব কিছু নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তো ও কি ছাড়বে না। ও নিজের বদলা নিবে, লাস্ট পর্যন্ত চেষ্টা করবে। शास्त्रों में लिख दिया है, कृष्ण को 16,108 पटरानी थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। को तो बड़े गल्प। जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर लेंगे। যারা বাবা থেকে বর্ষা নিয়েছে তারাই নিবে, তারা কিন্তু কোনো সময় থেমে যেতে পারবে না। তারাই আসে वर्षा बाबा থেকে নিবে। बैठे तो यहाँ ही हैं, बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो परंतु उससे जैसे तुमको बैराग है। यह छिछी दुनिया कब्रिस्तान है, दुनियाटाई নোংরা হয়ে গেছে, কবর হয়ে গেছে। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मनाभाव। बाबा की কিভাবে স্মরণ করতে হবে এইটাই ভাব চিন্তা সবসময় রাখতে বললেন। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे, गार्डन ऑफ फ्लावर की यहाँ स्थापना होगी। कोई तो ऐसे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। तो ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর ফুল আছে, देखलेই मन भरे जाए। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर, 5 रोज से रखा है तो भी खिला ही होगा, खुशबू रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद कराते उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुशी रहती है। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। सार है, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधन में जानबूझकर फंसना नहीं है। कोनो बंधन নাই তো জানে বুঝে একটা বন্ধন তৈরি করে নিলাম, ওই কাজটা বাবা বললেন করতে নাই। কেন কি যদি বন্ধন নাই তো সেবা করো। बाप से बंधन में फंसना नहीं है, ने बाधा यदि कोनो बंधने बाधा হয় নাই तो এখন बंधने बाधो ना। बाल ब्रह्मचारिणी होकर रहना, यदि बंधने बांधबे ना तखन बाल ब्रह्मचारिणी थाकबे। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, बाप हमारे सब दुख दूर करते हैं। शराब मिटाए वर्षा देने आया है, बाप और वर्षे को याद करो तो अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। নিজেকে अटेंशन দিতে হবে যে আমার বুদ্ধি যোগটা বাইরে কোথাও যাচ্ছে না, তো চেক করতে হবে। जो बच्चे सोमान की स्थिति में रहते वही बाप के हर फरमान को सहज ही पालन कर सकते।
পাওয়ার যে ফরমান সবগুলাকে माने নিবে। सोमान भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, देह अभिमान को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जब सोमान में हो तो सोमान शब्द भूल जाते, मेहमान ज़्यादा और प्रत्यक्षता कम। मैं सहज ही सफलता मूर्त बन जाऊंगी। स्लोगन, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तपस्या यदि करते হয় तो সময়টাকে বাঁচাও, বাহানা দাও না। সময়টাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বাহানা দিলে চলবে না। কেন কি সব কিছুর একটা বাবা কি বলে দিলেন, অর্থ বলে দিলেন। ओम शांति।